I'll remember this this voice. Yes, sir. Why didn't you complete homework? Yes, brah. Yes, sir. Why didn't you complete homework? Complete. Completed. Yes. You didn't send, that's why. Okay. Is my slide visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So one thing is that, guys, third part of the passive voice I'm going to teach. First, we will revise everything. This will be the last revision of passive voice. Tomorrow, I will teach directly the next last part of passive voice. This week is going to be very much important, so please don't skip class at any cost. Right? Chaliye. Yes, sir. Okay, sir. Sure, sir. Yeah. Tomorrow I teach. I'll teach quickly tomorrow, and then after we can have debate also. Debate should be continued because you get the flow by doing debate. चलिए. गाइस पैसिव किससे बनता है? Active. If doer can do the work. नहीं पैसिव बनाने के लिए रूट फॉर्मूला क्या है बताया था? बी एक्शन थर्ड फॉर्म. Passive. B B plus action X. third form plus B. हाँ कंटिन्यूस चल रहा है तो बी का बीइंग बन जाएगा, याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. परफेक्ट टेंसर बी की थर्ड फॉर्म बीइंग बन Being. जाएगी. राइट? एक बार शुरू से वापस देखिए. लुक, एक्टिव पैसिव दोनों ले लीजिए. कंटिन्यूस में बीइंग, परफेक्ट में हैज बीन. मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, आई एम फ्लाइंग काइट. बाहर देखो पतंग उड़ाई जा रही है तो Kite is Kite. kite is being Kite flight. Kite is being being flight. flight. Being fly. फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन. तो रिपीट करो. काइट इज बीइंग फ्लॉन. Kite is being flown. Kite is being That is flown. being. is being flown. नेक्स्ट, वो कल फसलों की सिंचाई कर रहा था तो ही वॉज इरिगेटिंग क्रॉप्स. कल फसलों की सिंचाई हो रही थी, मैं कुएं पे गया, मैं देखा. तो क्रॉप्स आगे आ जाएगा. क्रॉप्स के साथ वॉज वर्ड में से क्या आएगा? Crops were Were being irrigated. being irrigating. Being irrigated. रिपीट Crops अगेन. were being irrigated. ठीक है. मैंने बुक लॉन्च कर दी तो आई हैव लॉन्च्ड बुक. ट्राई करो. बुक लॉन्च हो चुकी है. Book have been Book launched. has Has been been launched. launched. Book has been launched. Book has been launched. परफेक्ट. उन्होंने रिजल्ट घोषित कर दिया तो शी हैज अनाउंस रिजल्ट. रिजल्ट अनाउंस हो गया है. Result has Result has been been announced. announced. Result have been announced. रिपीट. रिपीट. Result has been Result announced. has been announced. Result has Result been has announced. been announced. क्या रिजल्ट अनाउंस हो गया तो हैज आगे लो. Has result Has been result announced? been announced? Has result been announced. तो सर उन्होंने टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं. ही He हैज टॉट has टॉपिक्स. taught topics. Topics have been taught. Topics have been Topics have. Topics have been taught. कितने टॉपिक्स पढ़ाए जा चुके हैं सर? How many topics How have many been taught? topics have been taught? टेक द स्क्रीनशॉट. Taken, sir. Taken, sir.
चलिए अब इंसानों के ऊपर लेते हैं। कल बताया था इंसानों के ऊपर, वो सजा दे रहा है और उसको सजा दी जा रही है, उसको सजा दी जा रही है, पैसिव है। ही इज वही बी का बीइंग और पनिश का थर्ड फॉर्म रख के बोलो। he is being punished. एवरीबॉडी रिपीट ना। He is being punished. Punished. उनको वो पुरस्कृत कर रहे हैं, वो पुरस्कृत नहीं कर रहे हैं, उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। बोलो दे आर बीइंग They अवॉर्डेड। are being They are awarded, being being awarded. They awarded. are being awarded. उस लड़की की तारीफ हो रही है, She He was was being being criticized. praised. उस लड़की की कल तारीफ हो रही थी सर, है ना। क्या आपकी कल डांट पड़ रही थी, वर आ गया जाएगा, बोलो वर यू बीइंग स्कॉल्डेड। Were you Why being you being scolded? scolded? आगे वाई लगा दो। क्यों कल आपकी डांट क्यों पड़ रही थी? Why you Why were you why were being you being Why? scolded? scolded? Why were you being scolded? देखो ध्यान से सुनना। उसने दूसरे को कंपनी को निकाल दिया है, उसने दूसरे को कंपनी से निकाल दिया, तो एक्टिव वॉइस है। अरे उसने नहीं निकाला, उसको खुद को कंपनी से निकाल दिया गया है, उसको निकाल दिया गया है। इसमें कौन निकालने वाला है ही नहीं, तो ही के साथ है बी थर्ड फॉर्म, बी का बीन लगा के बोलो। He He has has been been fired. He has been Who fired. was being fired? अंडरस्टैंडेबल। Yes, sir. Yes, sir. किसको अपॉइंट किया गया उसकी जगह? तो Who has been Who appointed? Who has has been been appointed? appointed? He has been appointed. उसकी पिटाई क्यों हो रही थी कल? Why was he being Why beaten? was he being beaten? Why was he Why being was he beaten? beaten? किसको अभी चुनाव हुए, किसको इलेक्ट किया गया है? Who Who has been elected? Who has been elected? He has been elected. उनको तुम्हारे रिश्तेदार को इनवाइट किया नहीं है? नहीं, उनको इनवाइट कर दिया गया है, तो क्या बोलोगे? They have been They invited. have been invited. ठीक है। क्या उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है? Have they been Have Have they been informed? They have been informed. अरे यार वो आजकल ऐसे गालियां क्यों दे रहा है तुम्हारा पड़ोसी? अरे उसको भड़का दिया गया है, उसको उकसा दिया गया है। He has He been has been provoked. He has been provoked. नहीं नहीं नहीं, ही हैज के साथ बी की थर्ड फॉर्म आएगी बीन। फिर दोबारा बोलो, ही हैज बीन प्रोवोक्ड। he has He been has provoked. been Who has provoked. been provoked? अरे यार क्या डिस्कस किया जा रहा है आज, मुझे भी बताओ। देखो दो सेंटेंस, आप क्या डिस्कस कर रहे हो, ये एक्टिव वॉइस है। ऐसे इन जनरल लोग बैठे हुए हम जाके पूछते नहीं भैया क्या डिस्कस हो रहा है, क्या डिस्कस किया जा रहा है, देन What is being discussed? What What is is being being discussed? What is being discussed? उनको अरेस्ट कर लिया। तो क्रिमिनल का क्या हुआ? अरे उसको अरेस्ट कर लिया गया है। देखो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया एक्टिव वॉइस से, उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो Passive. He has He been has arrested. been He arrested. has been arrested. गुड, रिपीट अगेन, ही हैज बीन अरेस्टेड। He has been He has arrested. been arrested. वेरी गुड। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल, क्वेश्चन पूछना है किसको अरेस्ट कर लिया गया है? Who has been Who has been arrested? arrested? अंडरस्टैंडेबल एवरीबॉडी? Yes, sir. Yeah. ओके। Second, sir. चलिए अब आज जो हम पढ़ेंगे ना, थर्ड पार्ट ऑफ द पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। ये तो क्लियर है ना, हम डायरेक्ट स्कूल जैसा नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा मेथड बिल्कुल अलग है स्कूल से, Yes, sir. है ना। Yes, sir. स्कूल में आप एक्टिव से पैसिव ट्रांसलेट करते थे, हम लोग एक्टिव से पैसिव ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं ना, हम डायरेक्ट पैसिव के सेंटेंसेस बनाने का अभ्यास कर रहे हैं। जैसे रूटीन लाइफ में आप और हम सब बोलते हैं ना, ये बोलने वाला पैटर्न है, ये सिर्फ समझने वाला पैटर्न नहीं है, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, सेंटेंस बोलकर अभ्यास कर रहे हो पैसिव वॉइस के। तो आज हम पैसिव वॉइस जो लेंगे ना,
वो इंसानों के ऊपर सॉरी प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के ऊपर लेंगे। 3 टेंस हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, आज हम लेंगे प्रेजेंट सिंपल। उसके लिए एक बार वापस मैं ब्रीफ कर देता हूं। देखिए, अब तक जो आपने एक्टिव पैसिव पढ़े थे, एक बार मैं आपको ब्रीफ करता हूं। स्कूल वाले फॉर्मूले प्रोसेस में आपको बहुत जटिलताओं से, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। मैं आपको एक इजी टेक्निक से पढ़ा रहा हूं। पैसिव किससे बनता है, आपको फॉर्मूला याद रखना, बी एक्शन थर्ड फॉर्म। कोई सा भी टेंस हो, यू हैव टू यूज बी एक्शन थर्ड फॉर्म, राइट। स्टे फोकस्ड ऑन स्क्रीन गाइस। पैसिव को बताने के लिए हम लोग यूज करेंगे बी एक्शन थर्ड फॉर्म। ओके, अब थर्ड फॉर्म स्टेबल है। टेंस परिवर्तन, एक्टिव वॉइस में टेंस परिवर्तन कौन बताता, एक्शन कंटिन्यूस काम चल रहा तो एक्शन के साथ आईएनजी लगा रहे थे। पास्ट की बात कर रहे थे तो हम एक्शन की सेकंड फॉर्म लगा रहे थे। बट स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस में ये नहीं होगा क्योंकि एक्शन की परमानेंट थर्ड फॉर्म है। तो टेंस परिवर्तन कौन बताएगा, बी। बी के 3 फॉर्म आपने पढ़ी हुई। व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द बी, Is a man. सेकंड फॉर्म, एंड थर्ड फॉर्म Be. ठीक है। अब समझना, आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ध्यान से सुनेगा। मैं सुबह जल्दी उठता हूं तो क्या आएगा, आई एम गेट अप अर्ली या आई गेट अप अर्ली। I get I get up early. I get up early. I get up early. जो काम करते हैं वो बता दीजिए। हाउस होल्ड वाले बोलिए कि मैं झाड़ू लगाता हूँ, बोलो आई स्वीप द फ्लोर। I sweep the I floor. sweep the floor. मैं पोछा लगाता हूँ, बोलो आई मॉप द फ्लोर। I I mop the floor. ठीक है, तो ये हैबिट्स। अब इसमें देखिए, आई के तुरंत बाद एक्शन आ रहा है, बीच में कुछ भी नहीं आ रहा है ना। तो पैसिव वॉइस में भी यही होगा, आई के तुरंत बाद एक्शन आएगा। एक्शन आएगा मतलब पैसिव किससे बनता, आपको अभी बताया था। B plus action third form. G plus action third form. ये डायरेक्ट पैसिव बनाने का फॉर्मेट है। तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट बी थर्ड फॉर्म आएगा। पहले तो आप हिंदी में समझिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस के पैसिव को हिंदी में समझिए। मान लीजिए आपके रूम में कोई किचड़ के पाँव लेके आ रहा, तो आप क्या बोलोगे, ओ भाई गंदा मत कर, मैं इस फर्श पे रोज पोछा लगाता हूँ। मैं इस फर्श पे रोज पोछा लगाता हूँ। दिस सेंटेंस इज एक्टिव और पैसिव। Active. Active. आपकी मर्जी। आप ये भी तो बोल सकते हो, भाई गंदा मत कर, इस फर्श पे रोज पोछा लगाया जाता है। ये Passive. Passive. ये पैसिव वॉइस है। क्यों, क्योंकि पोछा कौन लगाता है, काम को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। व्हेन यू गिव इंपॉर्टेंस टू द वर्क, दैट इज पैसिव वॉइस। व्हेन यू गिव इंपॉर्टेंस टू द डूअर, दैट इज द एक्टिव वॉइस। ओके, चलिए। तो इस फर्श पे रोज पोछा लगाया जाता है। मैं डायरेक्ट पैसिव बना रहा हूं, देखिए स्क्रीन पर। इस फर्श को बोलेंगे दिस फ्लोर, ठीक है। और उसके बाद पैसिव के लिए बी थर्ड फॉर्म लगा दो, दिस फ्लोर, बी थर्ड फॉर्म बी। मॉप की थर्ड फॉर्म क्या होती, No. मॉब्ड। और रोज के लिए आप आगे लिख सकते हो एवरीडे या डेली, ठीक है। क्या किया मैंने, दिस फ्लोर पैसिव के लिए डायरेक्ट बी थर्ड फॉर्म लगा दिया। लेकिन प्रेजेंट टेंस में एक लफड़ा है, सब्जेक्ट दिस फ्लोर सिंगुलर है तो उसके बाद बी, और फिर यहाँ पे प्लूरल आ गया तो भी बी। तो प्रेजेंट टेंस में वेरिएबल होता है ना, तो इसलिए वर्ब वेरिएबल होता है, इसलिए बी काम नहीं करेगा। क्योंकि सिंगुलर के साथ भी बी आएगा, प्लूरल के साथ भी बी आएगा, जो सूट नहीं करता है। तो मजबूरन आपको बी की जगह, आपको भी पढ़ाया था, बी की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, जो क्या होती है, EMR. बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, Is a man. Is a man. ठीक है। तो दिस फ्लोर बी मॉप्ड एवरीडे की जगह क्या हो जाएगा, This floor is mopped. This floor is mopped every day. बी को हम रिप्लेस कर रहे हैं इज एम आर से। तो आपको ये समझना, बी थर्ड फॉर्म बोलिए या इज एम आर थर्ड फॉर्म बोलिए, बोथ आर सेम, क्योंकि बी की फर्स्ट फॉर्म ही इज एम आर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me rewrite this sentence. This floor is mopped every day. और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका मकान है, मैं मेरे मकान को हर साल पेंट करता हूँ। एक्टिव है पैसिव? Active. 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 मैं पेंट करता हूँ, एक्टिव। मेरा भाई हर साल पेंट करता है। Active. Active. मेरे मकान को हर साल पेंट किया जाता है। Passive. 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 नहीं, मेरे मकान को हर साल पेंट किया जाता है, ये क्या है?
पैसिव Passive. नहीं एक्टिव एक्टिव। पैसिव मेरे मकान को हर साल पेंट किया जाता है। Passive. पैसिव ये पैसिव है ना, कौन पेंट करता हमें नहीं पता। तो मेरे मकान को, माई हाउस, उसके बाद पैसिव के लिए डायरेक्ट बी थर्ड फॉर्म लगा दो। बी पेंट की थर्ड फॉर्म क्या होती? पेंटेड। और हर साल के लिए आगे लगा दीजिए एवरी ईयर। माई हाउस बी पेंटेड एवरी ईयर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि माई हाउस सिंगुलर है और बी सिंगुलर में सूट नहीं होता है, तो आपको मजबूरन हर बार बी को रिप्लेस करना पड़ेगा। किससे? इज एम आर। बोलो माई हाउस इज पेंटेड एवरी ईयर। माई हाउस माय हाउस इज पेंटेड एवरी ईयर और एग्जाम्पल और एग्जाम्पल्स लेते हैं। अच्छा, पता है इसका पैसिव ही सूट होता है। जैसे कि दुकानों पे भी लिखा होता है ना, हम यहाँ फटे नोट लेते हैं, ये नहीं लिखा होता, ये लिखा होता है यहाँ फटे नोट लिए जाते हैं, यहाँ सब्जियां बेची जाती है, यहाँ पुरानी कारें खरीदी जाती है या पुरानी कारें बेची जाती है। तो पैसिव में ही सूट करेगा, काम को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, राइट। तो और आगे चलते हैं। प्लूरल, चलो प्लूरल भी ले ही लेते हैं। यहाँ फटे नोट लिए जाते हैं, फटे नोट्स को बोलते हैं टॉर्न नोट्स। क्या बोलेंगे? टॉर्न नोट्स नोट नहीं, नोट से सब्जेक्ट प्लूरल हो गया इस बार। यहाँ फटे नोट लिए जाते हैं, ये एक्टिव है या पैसिव है? पैसिव हम यहाँ फटे नोट लेते तो एक्टिव यहाँ फटे नोट लिए जाते हैं पैसिव तो फटे नोट को बोलेंगे टॉर्न नोट्स। पैसिव के लिए बी थर्ड फॉर्म बी, और लेने को टेक कहते हैं। टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, और यहाँ के लिए हियर। टॉर्न नोट्स बी टेकन हियर। खुशी? Yes, sir. चेंज। Torn notes are taken here. ठीक है। आर क्यों आ रहा है? क्योंकि बी इस बार सब्जेक्ट प्लूरल आ गया, तो मैंने कहा ना वेरिएबल होता है प्रेजेंट टेंस में, तो बी हटा के इज एम आर में से आर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि टॉर्न नोट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आर। बोलो टॉर्न नोट्स आर टेकन हियर। Torn notes are notes are taken taken here. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। यस सर अब ये पास्ट, लेट्स से ये पास्ट की बात है। लेट्स से कल हु वाज एब्सेंट? गीतिका वाज एब्सेंट यस्टरडे। ठीक है, मैं गीतिका के कह रहा हूँ, अरे कल कहाँ गए यार? मैंने नया टॉपिक पढ़ाया था। एक्टिव है पैसिव? Sir, I was present yesterday. दिस इज जस्ट एग्जांपल। Oh, तो मैंने कल नया टॉपिक पढ़ाया था, एक्टिव है पैसिव? एक्टिव active. मेरी मर्जी में ये भी तो बोल सकता हूँ, है ना? अरे गीतिका कल नया टॉपिक पढ़ाया गया था, आप कहाँ गए थे? पैसिव Passive. कल नया टॉपिक पढ़ाया गया था, ये पैसिव है ना? यस सर Yes, sir. अब ध्यान से सुनो, जिसको इंपॉर्टेंस दे रहे उसको आगे ले लो। नए टॉपिक को बोलेंगे न्यू टॉपिक। पैसिव के लिए बी थर्ड फॉर्म बी। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती? टॉट। और कल के लिए क्या आएगा? यस्टरडे। Yesterday. क्या किया? न्यू टॉपिक बी टॉट यस्टरडे। क्या चेंज करेंगे? न्यू टॉपिक Was. वाज टॉट यस्टरडे मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, पैसिव वॉइस में टेंस कौन चेंज करता है? बी। एक्शन की पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म चाहिए, बट टीच की तो परमानेंट थर्ड फॉर्म टॉट है। पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है, तो टेंस परिवर्तन में हेल्प योगदान बी का रहेगा। तो पास्ट में बी की सेकंड फॉर्म आएगी। ऊपर लिखा हुआ बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाज तो समझ में आ रहा? बी को रिप्लेस करके सेकंड फॉर्म के रूप में लिख देंगे। लेकिन वॉज वर्ब में से भी क्या आएगा? न्यू टॉपिक सिंगुलर है तो वॉज आएगा। बोलिए न्यू टॉपिक वॉज टॉट यस्टरडे। न्यू New टॉपिक topic was active. कल क्या हुआ था? कल कॉपीज चेक की गई थी, Passive. तो कॉपीज आगे आ जाएगा। कॉपीज के बाद बी थर्ड फॉर्म कॉपीज बी चेक्ड यस्टरडे। माधवेंद्र बेटा, yes, sir.
क्या आएगा? कॉपीज बी चेक्ड, चेंज करो कल के लिए, पास्ट के लिए. Copies were checked yesterday. Copies were checked yesterday. क्यों आ रहा वर्ब? बिकॉज कॉपीज जो है वो प्लूरल है, ठीक है ना. तो बी की जगह आपको उसकी सेकंड फॉर्म वाज वर में से वर आएगा. बोले कॉपीज वर चेक्ड यस्टरडे. Copies Copies were were checked checked yesterday. yesterday. चलिए अब फटाफट, अब एक तरफ एक्टिव लिख रहा हूँ, एक तरफ पैसिव. ये बड़ा कंफ्यूजिंग चीज है ना. ये आप मेरे वाले मेथड से पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेगा ना. बाकी इसको मैं स्कूल वाले मेथड से पढ़ाऊंगा, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, है ना. जैसे मैं रोज पौधों को पानी पिलाता हूँ, बोलो आई वाटर द प्लांट्स. I would. Water the plant. ये एक्टिव वॉइस से. अरे भैया ये पौधे सूख क्यों रहे? अरे नहीं 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 सूख रहे, पौधों को रोज पानी पिलाया जाता है. ये पैसिव वॉइस है. तो अब डायरेक्ट पैसिव बनाना तो प्लांट्स, ये एक्टिव वॉइस में तो आई के बाद सब्जेक्ट आ रहा. पैसिव वॉइस में पौधों को रोज पानी पिलाया जाता है, प्लांट्स. बी वाटर की थर्ड फॉर्म Plants Watered. are watered एवरी डे. every day. Plants बी are की जगह watered. इस की जगह इज एम आर, बी की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी इज एम आर. तो बी जगह क्या हो जाएगा? Are. Are. प्लांट्स आर वाटर्ड एवरी डे. Plants are watered every day. वाटर्ड एवरी डे. Every day. अब स्कूल में तो क्या यूं बताया जाता है कि ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में इज एम आर लगा. तो वो आया कहाँ से? वो इज एम आर का सोर्स मैंने आपको बताया. बी की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगता है, पास्ट में सेकंड फॉर्म वाज वर लगेगा. तो मैं आपको ऐसी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ. लुक एट द स्क्रीन, है ना. पहले एक्टिव देख लो. मैं यहाँ इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच हियर इंग्लिश, है ना. हम यहाँ जीडी डिस्कस करते हैं, वी डिस्कस जीडी हियर. मैं रोज होमवर्क चेक करता हूँ, आई चेक होमवर्क डेली. वो सर हैं, वो सर रोज लिंक शेयर करते हैं, ही शेयर्स लिंक एवरी डे. वह यहाँ कार की मरम्मत करता है, वो मैकेनिक, ही रिपेयर्स कार हियर. वह यहाँ सब्जियां बेचती, सी सेल्स वेजिटेबल हियर. ये एक्टिव वॉइस है सारा, ठीक है. अब हमको पैसिव वॉइस बनाना है. इस टाइप के सेंटेंस हम पहले बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं. पैसिव के लिए बताया था फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा, बी थर्ड फॉर्म. लुक एट द स्क्रीन. लेकिन इस बार प्रेजेंट टेंस से, प्रेजेंट टेंस में बी की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा? Pajama. Is a इज एम आर. पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म क्या लगेगी बी की? Was. वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म. अंडरस्टैंडेबल एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब मैं यहाँ इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच हियर इंग्लिश. ऐसे बोलते हैं यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, लिखा बोर्ड लगा होता है यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है. ये किसी को दिखा रहे हैं ये यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो क्या आएगा? English is English is here. taught here. इंग्लिश के बाद बी टॉट, इंग्लिश बी टॉट की जगह इज टॉट लगा के बोलो सब लोग एक साथ. English is English taught is here. taught here. क्यों हुआ, कैसे हुआ? डू यू नो द रीजन एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. हम जीडी डिस्कस करते हैं, वी डिस्कस जीडी. यहाँ क्या होता है इस रूम में? यहाँ जीडी डिस्कस होती है, यहाँ सामूहिक चर्चा होती है. जीडी आगे आ जाएगा, फिर बी थर्ड फॉर्म, बी डिस्कस्ड. GD GD is is discussed discussed here. here. Everybody repeat, GD is discussed here. It is here. वो रोज, मैं होमवर्क रोज चेक करता हूँ. होमवर्क रोज चेक होता है तो Homework is Homework checked is daily. checked every day. Homework is checked daily. repeat everybody. Homework Homework is is checked checked Every daily. day. Homework is checked daily. आपको कोई पूछे कैसे क्लास होती है, आप बोलोगे वो सर होमवर्क, वो रोज लिंक शेयर करते हैं. हमेशा लिंक भेजा जाता है या शेयर किया जाता है ग्रुप में. Link is Link shared is every day. shared every day. Shared every day. repeat again. Link is Link is shared shared every every day. day. Link is shared every day. वो आदमी यहाँ कार रिपेयर करता है तो ही रिपेयर्स कार हियर. हम बोलते हैं चलते चलते यहाँ कार रिपेयर, कार की मरम्मत होती है यहाँ पे. Car is repaired here. Are repaired here. वो कार इज रिपेयर्ड हियर. Car Car is is repaired Car here. is prepared here. Repaired here.
चलो अगला आप बनाओगे। वो औरत यहाँ सब्जियां बेचती तो शी सेल्स वेजिटेबल। ऐसे बोलते हैं ना, यहाँ चलते चलते किसी को दिखा रहे भैया यहाँ सब्जियां बेची जाती है, ऐसे बोलते हैं ना, यहाँ सब्जियां बेची जाती है। बेचने को सेल कहते हैं, सेल सॉल्ट सॉल्ट, ये पहले भी बताया था मैंने। Vegetables are Vegetables sold are here. sold here. Sold here. फैंटास्टिक। रिपीट अगेन, बोलो वेजिटेबल्स आर सोल्ड हियर। Vegetables are sold here. Vegetables Are are sold sold here. here. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। Done. Doesn't show. अब पास्ट में थर्ड फॉर्म दिवाली, बी सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड, और आगे इन नवंबर। ठीक है, पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म चाहिए तो एक्टिव वॉइस में तो एक्शन की सेकंड फॉर्म लगती, पैसिव वॉइस में बी की सेकंड फॉर्म लगेगी। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती? Was. Was were. तो क्या आएगा, बोलो दिवाली वॉज सेलिब्रेटेड इन नवंबर। Diwali was celebrated in November. November. उसने परिणाम घोषित किया था कल। मेरा दूसरे सर है ना, ही अनाउंस रिजल्ट। कल क्या हुआ था? कल रिजल्ट परिणाम घोषित हुआ था। Result was Result was announced yesterday. Yesterday. रिपीट अगेन। Result was announced yesterday. Yesterday. उन्होंने कल पैसिव वॉइस पढ़ाया था। सर ने क्या पढ़ाया था? ही टॉट पैसिव वॉइस। कल क्या पढ़ाया गया था? ये अभी मैंने पढ़ाया, कल पैसिव वॉइस पढ़ाया गया था। Passive voice The was voice was taught yesterday. yesterday. रिपीट अगेन। The voice was taught yesterday. yesterday. तुम्हारा वॉज पर आई थिंक इट्स क्लियर ना। मैंने दिवाली पर कार खरीदी थी तो आई परचेज कार ऑन दिवाली। ऐसे बोलते ना, ये दिवाली पर कार खरीदी गई इस बार, तो कार आगे आ जाएगा बी थर्ड फॉर्म, बी परचेज्ड ऑन दिवाली। Car is purchased. Car The car was Car was. purchased on Diwali. कार इज परचेज्ड बोल रहे हो, इसका मतलब कार खरीदी जाती है हर बार दिवाली पर, खरीदी जाती है। Car was purchased on Deepavali. Yes. बोलिए सब लोग, बोलिए मेरे साथ, बोलो कार वाज परचेज्ड ऑन दिवाली। Car Car was purchased purchased on on Diwali. Diwali. Car was purchased on the उसने मूवी रिलीज की थी, बोलो ही रिलीज मूवी। He He released released movie. He released movie. मूवी रिलीज हुई थी कल परसों तरसों, तो Movie was Movie was released Was yesterday. released. वेरी गुड। उसने मुझे प्रताड़ित किया था। अब ये इंसानों वाला आ गया, ध्यान से सुनना। उसने मुझे टॉर्चर किया था। एक्टिव या पैसिव? Active. Active. ये एक्टिव है क्योंकि टॉर्चर करने वाले को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं सेंटेंस के अंदर। उसका नाम है, उसने टॉर्चर किया था। तुम वहां से आ क्यों है? अरे यार वहां मुझे प्रताड़ित किया गया था, मुझे वहां टॉर्चर किया गया था। ये एक्टिव या पैसिव? passive. क्यों है पैसिव? क्योंकि किसने टॉर्चर किया हमें नहीं पता, राइट? तो मुझे प्रताड़ित किया गया था। आई के बाद Was tortured. I was tortured. हाँ, He आई was के बाद tortured. हाँ, आई के बाद बी थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के लिए आई बी टॉर्चर्ड, बी की जगह पास के लिए वॉज वर, तो बोलो आई वाज टॉर्चर्ड देयर। I was tortured. कल क्या तय हुआ था? देखो आपने कल क्या डिसाइड किया? Taken. देखा, Yes, sir. एक अगेन। Taken? Yes, sir. Okay, so these sentences for your homework. I'll share one more slide with you. And अभी आप नीचे वाले सेंटेंस, ये बाकी का खेल है, बोलो
या कोरोना ने सब चेंज कर दिया, बोलते हैं भाग्य का खेल है, बोलो इट्स ट्विस्ट ऑफ फेट. It's twist of fate. Twist of गुड. ये बड़ा अच्छा है. इज्जत कमाई जाती, मांगी नहीं. बोल रिस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड. Respect is commanded, Respect is not commanded, demanded. not demanded. ओके. सो पैसिव सेकंड पार्ट एक बार ब्रीफ कर देता हूँ. प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल. वो पैसिव के लिए बी थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर बी का लफड़ा, तो बी की जगह प्रेजेंट में इज जमा, पास्ट में बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ड लगा के थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा. दिस इज द सिंपल लॉजिक. माय हम्बल रिक्वेस्ट, आई एम शेयरिंग सम अदर स्लाइड्स विद यू. Please, 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 please do homework. Most of the people carelessly they don't do homework, and if you don't do homework, then you will have to suffer, right? So everybody has to do. First part was done. Now this is the third. First and second was done. This is the third part of the passive voice. Okay, I'm sharing third part of the passive voice with you. Slide, but make sure that you guys will do homework on this slide. If you don't do homework, then I have no problem. No? I'm sharing two slides, guys. No? We have created two slides with Hindi meaning that you can easily frame sentences. Hindi sentences are written. You just need to fill is, am, are and was, were in the blank space and repeat one sentence 5 times. Automatically, you will have good practice, right? If you do practice, it's good, because most of the people, when we go in and they stop doing homework, right? All right. So now we are going to start GD, guys, because yesterday, day before yesterday, it's been 2 days, we haven't discussed. I have shared, I've shared 2 slides into the group for your homework.